Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue part 5 of chapter number 4 geography, that is agriculture. As we have already seen in part 4, as we have already seen in part 4 about the food crops, right? We have seen about the horticulture also. Last topic was horticultural crops, then before that food crops other than grains that we already studied, right? Now today we are going to continue with the non-food crops. Now in non-food crops, first of all, when we talk about the rubber, so rubber is an equatorial crop, right? It is an equatorial crop but under special conditions only. वो tropical और subtropical areas में भी grow होता है. Okay, it requires moist और humid climate चाहिए with rainfall of more than 200 centimeter. उसको moist climate चाहिए, humid climate चाहिए, and जो rainfall है which is required for the growth of rubber is more than 200 centimeter and temperature about 25 degrees Celsius. And it is an important industrial raw material है. रबर इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर जो भी रबर से जो थिंग्स बनते हैं उसके लिए. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेट्स वेयर रबर is grown, that is Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andaman and Nicobar Islands, and Garo Hills of Meghalaya. So that was about the rubber. If the question is asked that describe about the rubber, right, then you can write equatorial crop है, moist and humid climate, requires rainfall of above 200 centimeter and temperature about 25 degrees Celsius. Then it is an important industrial raw material. Then the states where rubber are grown that you have to write. And remember one thing, in map also they can ask that locate rubber, where rubber is grown. Locate any one state where rubber is grown, then you have to locate any one state, right, from your which is given. Next is the fiber. Now when we talk about fiber crops, तो फाइबर क्रॉप्स में क्या आएगा, तो कॉटन है, जूट है, नेचुरल सिल्क है, ये सब जो है वो फाइबर क्रॉप्स है. ओके, उसमें से जो क्रॉप्स है जैसे कि जैसे हम सिल्क की बात करें, इसमें हेम्प भी है. यस, तो ये भी एक टाइप का फाइबर ही है. तो ये सब मेजर फाइबर क्रॉप्स है. उसमें से कॉटन, जूट एंड हेम्प जो है वो सॉइल में ग्रो होते हैं, और सिल्क जो है वो कुकुन, पता ही है, राइट, हमें वो सिल्क वॉर्म में से फ्रॉम द कुकुन्स ऑफ द सिल्क वॉर्म में से जो किस पे फीड होते हैं, ग्रीन लीव्स पे, स्पेशली दैट इज़ मलबेरी. एंड रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरिकल्चर. रिमेंबर दिस थिंग. हाँ, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर. अगर हमें सिल्क चाहिए तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म पे जो रेयरिंग है, जैसे कैटल रेयरिंग होता है वैसे सिल्क का रेयरिंग जो होता है टू ऑब्टेन सिल्क, दैट इज़ नोन एज सेरिकल्चर. ओके, next is the cotton. Now cotton, as we already know that it is a kharif crop, and cotton is one of the important या तो main raw material बोल सकते हैं for cotton textile industry, and India is believed to be the original home of cotton plant. सबसे ज़्यादा यहाँ पे growth होता है cotton का, and India is the second largest producer of cotton in the world, and cotton grows in drier parts of the black cotton soil, Deccan Plateau में. और जो टेम्परेचर उसको चाहिए तो दैट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़, एंड 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन. फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए उनको जहाँ पे फ्रोस्ट नहीं लगना चाहिए उनको, राइट, एंड सनशाइन भी चाहिए. एंड खरीफ क्रॉप है वो तो देखा है 6 to 8 months लगते हैं प्रॉपरली वो मैच्योर होने के लिए. एंड द स्टेट्स वेयर कॉटन इज़ ग्रोन आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. Okay, these are the states where cotton is grown. Next, when we talk about the jute, it is known as the golden fiber also. Remember this thing, this can be asked for 2 marks, that jute is known as golden fiber. Explain. Then we already know that jute grows well on well drained fertile soil. Fertile soil में ही ये jute grow होता है. In the floodplain areas, floodplains where soils are renewed every year, जहाँ पे soil renew होती रहती है
राइट, बिकॉज आफ्टर फ्लड जो सॉइल है वो रिन्यू होगी। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड, जब उसका ग्रोथ होता है तो एट दैट टाइम हाई टेम्परेचर इट रिक्वायर्स। वेस्ट बंगाल है, बिहार है, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय, दे आर द मेजर jute producing states, and it is used in making gunny bags, mats, ropes, yarn, carpets and many other artifacts, and due to the high cost इसका मार्केट जो बहुत कम हो गया, सो पीपल व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नाउ यूजिंग ऑल्टरनेटिव थिंग फॉर दिस जूट, राइट। एंड पैकिंग मटेरियल्स के लिए अब वो लोग ने ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लिया है, लाइक पहले जूट बैग में वीट राइस आता था, राइट, अभी दे आर नॉट यूजिंग दैट जूट। So that was all about the non-food crops. Now, next when we talk about technological and institutional reforms, we already know that agriculture provides a livelihood for more than 60% of its population, right? We know that agriculture जो है it provides livelihood, more than 60% of the people they are engaged in agriculture, so उनका earning इसमें से ही होता है। सो दिस सेक्टर नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के उनको सीरियसली ज़रूर है, जिसमें हमें पता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज ऑलरेडी स्टार्टेड जस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस, राइट, एंड द वाइट रिवॉल्यूशन ये भी एक रिफॉर्म है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का है ये। वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाई पीपल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, ये सब रिफॉर्म्स जो है ये स्टार्ट किए हैं सो दैट एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़े, राइट। सो मेन फोकस उनका यही था। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट सम इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो लाइक बहुत सारे स्कीम जो है दे वर इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्पेशली फॉर द फार्मर्स, दिस थिंग्स वर स्टार्टेड। देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम that was also started. This was also for the फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन द रेडियो, कि पहले से उनको वेदर फोरकास्ट करके बोल ही देते, तो सो दैट वो लोग अवेयर रहे, ताकि अगर ज़्यादा बारिश भी आ गई तो उनके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। सो रेडियो टेलीविज़न में वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करती है। रेम्यूनरेशन क्या है कि एक स्मॉल अमाउंट जो उनको मिलता है। एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सपेक्टेशन ऑफ फार्मर्स, कि जो प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड की है अकॉर्डिंगली ही उनको वो प्राइस पे उनको सेल करना है। बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडल मैन, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं, जो मिडल मैन कौन है कि एक फार्मर से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचने तक जो मिडल मैन वर्क करता है, तो वो जो है स्पेकुलेट ना कर दे, वो मैनिपुलेट ना कर दे, तो उसके लिए उन्होंने प्राइस जो वो ऑलरेडी डिसाइड करके रखी हुई होती है, राइट, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आफ्टर दैट वी ऑल्सो नो कि जो लैंड रिफॉर्म्स के लॉज है वो इनेक्ट हो गए थे, वो स्टार्ट हो गए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बाहर लैक होता रहता है। लाइक बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स के नए लॉज जो है वो तो बनाए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सो गवर्नमेंट जो है उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म स्टार्ट किए थे जो 1960s और 1970s के बाद हमें दिखे, जो हमने अभी पढ़ा अबाउट द ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन। फिर हमने ये इनिशिएटिव्स देखे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया, देन एग्रीकल्चर प्रोग्राम स्पेशली फॉर फार्मर्स जो है वो इंट्रोड्यूस, वेदर जो फोरकास्ट करके उनको बता देते थे अबाउट द एक्चुअल थिंग व्हाट इज़ हैपनिंग एंड ऑल, राइट। अब बिफोर मूविंग अहेड, मुझे आपके टेक्स्ट बुक में एक नॉट एग्जाम्पल बट वन बॉक्स इज़ गिवन, भूदान मोमेंट, एक्चुअली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँ कि महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हेयर, लाइक एंसेस्टर उनके। तो because Vinoba Bhave also participated in the satyagraha, right, he was one of the votaries of the Gandhi's concept of ग्राम स्वराज, मतलब वो भी एक थे जो सपोर्ट करते थे गांधी जी को। गांधी जी आफ्टर गांधी जी मार्टिरडम, मतलब उनके बलिदान के बाद विनोबा भावे जो थे
उन्होंने अब जो पदयात्रा गांधी जी की थी वो कंटिन्यू रखी थी गांधी जी के मैसेज स्प्रेड करने के लिए। दो वंस जैसे उनकी वो पदयात्रा चल रही थी, तो वंस वाइल ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन आंध्र प्रदेश समवेयर, प्लेस का नेम इज़ ऑल्सो गिवन। तो वहाँ के जो पुअर लैंडलेस विलेजर्स जो थे उन्होंने डिमांड की थी कि थोड़ी लैंड उनको चाहिए थी फॉर देयर इकोनॉमिक वेल। विनोबा भावे ने प्रॉमिस तो नहीं किया इमीडिएटली, बट उन्होंने अश्योर किया था, मतलब बोला था कि मैं गवर्नमेंट से बात करूँगा एंड he will do something for the people of that village. Suddenly श्री रामचंद्र रेड्डी stood up, initiative लिया उन्होंने and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. उन्होंने क्या किया, 80 एकड़ की लैंड जो है वो 80 लैंडलेस विलेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का उन्होंने सोचा। तो वो एक्ट को भूदान बोलते हैं, राइट। एंड लेटर he traveled and introduced his ideas widely all over India. एंड फिर जो ज़मींदार्स थे, जो ओनर्स थे, इन्होंने भी ऑफ़र किया था टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमॉन्ग द लैंडलेस। तो उसको ग्रामदान बोलते हैं कि ज़मींदार्स थे फिर ओनर्स, मतलब रामचंद्र रेड्डी को देखकर फिर जो ज़मींदार ओनर्स जो थे उन्होंने थोड़े विलेजेस जो थे वो लैंडलेस को देने के लिए, लैंडलेस पीपल को देने के लिए सोचा, तो उसको ग्रामदान बोलते हैं। एंड मैंने इसलिए आपको बोला बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड दैट एक्सप्लेन द भूदान मूवमेंट, व्हाट इज़ ग्रामदान मूवमेंट, तो आपको वो पता होना चाहिए, दैट्स वाई आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इनकम। एग्रीकल्चर ऑलरेडी पता है कि वो हमारे मतलब इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसका जीडीपी में भले ही शेयर बहुत कम है, राइट। डिक्लाइनिंग ट्रेंड है फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स भी, हमें पता ही है कि 2010-11 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वॉज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। सी 52% है, and the share of agriculture in GDP is declining, right? This declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because जो भी डिक्लाइन या स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर होता है तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगी, एंड इकोनॉमी पे असर पड़ेगी मतलब डेवलपमेंट पे डायरेक्टली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इट। सो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स स्टार्ट की एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करें, एंड by the establishment of Indian Council of Agriculture Research, that is ICAR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, वेटरनरी सर्विसेज जो है, वेटरनरी सर्विसेज जो एनिमल्स की होती है, एनिमल ब्रीडिंग के लिए सेंटर्स बनाए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस फील्ड उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, जस्ट टू इम्प्रूव दिस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर उनको आगे बढ़ाना था, उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए थे। सो दिस थिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय देम। ओके, सो दैट वाज अबाउट द contribution of agriculture. Now in the next part we will just see about the food security, that is the last part of this chapter. Okay, I hope so you have enjoyed and you have understood this thing about this GDP and all. ओके, फार्मर्स जो थे उनको इफ़ेक्ट हो रहा था कि जो फार्मर्स उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था पता है कि दे वर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना वो बहुत डाउन हो रहा था, मतलब जो एम्प्लॉयड थे इन एग्रीकल्चर सेक्टर देन टू दे वर नॉट गेटिंग एनीथिंग। फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो थे, अगर एक फार्मर है तो उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ बराबर नहीं थी, फिर पावर रिसोर्सेज भी चाहिए, रोड्स भी प्रॉपर अवेलेबल होने चाहिए, देन इज सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र्स वो भी बहुत कम हो गए, तो इसके वजह से बहुत कम हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो दैट वाज अबाउट दिस थिंग, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, द लास्ट टॉपिक दैट इज़ फूड सिक्योरिटी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।